Hello everyone, welcome to my channel Biology Door. So this is the fourth part of our body fluids and circulation class 11 chapter. Okay. So आज की जो वीडियो है हम उसमें कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. What is cardiac cycle? ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमारे हार्ट के बारे में पढ़ लिया. ठीक है. अब हम कार्डियक साइकिल क्या होती है वो पढ़ेंगे. राइट. So all four chambers of heart are in a relaxed state. जो हमारे चारों चैम्बर हैं हर्ट के वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं. ठीक है. दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल. जॉइंट डायस्टॉल क्या होता है वो हम पढ़ते हैं अभी. एज अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन. यहाँ पे हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ऑलरेडी पढ़ लिया है. क्या होते हैं ये वॉल्व्स? ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं बिटवीन दी राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकुलर, एंड बाइकस्पिड इज लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स होते हैं. सो व्हेनेवर दे आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वाना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर. अब जैसे ही ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड जो है हमारा वो क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है? लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकुलर तक और राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकुलर में. ठीक है. यहाँ पे हमारी फ्लो हो जाती है. जैसे ही द सेमील्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज टू दिस स्टेज, द SAN sinoarterial node now generates an action potential. यहाँ पे एक action potential generate होगा which stimulates both the arteria to undergo a simultaneous contraction so that they cover the contraction. यहाँ पे एक contraction cover करेंगे जिसको हम कहते हैं arterial systole. ठीक है. This increase the flow of blood into ventricles by the 30%. अब ये जो आर्टरियल सिस्टोल है हमारा, ये क्या करता है? ब्लड का जो फ्लो है उसको इंक्रीज करेगा 30% तक. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AVN नोड, और यू कैन से AV बंडल जो है जो वेंट्रिकुलर जो बंडल है हमारा, वहां से जो बंडल ऑफ his जो है, this is a very important, bundle of his transmit it through entire ventricular musculature. This cause the ventricular muscle to contract. तो यहाँ पे ventricular systole और diastole मतलब relaxation और contraction यहाँ पे होता रहता है. ठीक है. So ventricular systole जो है वो क्या करेगा? It increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid. A ventricular systole is responsible for the closing of tricuspid. जैसे ही tricuspid और bicuspid like वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे due to the attempt backflow of blood into the arteria. यहाँ पे फिर backflow नहीं हो पाएगा. As the ventricular pressure increases further, the semilunar valve guarding the pulmonary artery and the arteria are forced open. उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है, हमारी जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं, कौन सी वॉल्व्स हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स. ठीक है. वो क्या करेंगे? दे गार्ड दी पल्मोनरी आर्टरी और द एओर्टा आर that is forcefully opened and allow the blood in the ventricular to flow through these vessels into the circulatory pathways. ठीक है. Then what we have? We have the ventricles now relax. अब जो ventricles हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे. इसको हम कहते हैं ventricular diastole, and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valves which prevent the backflow of blood into the ventriculars. अब यहाँ पे same the process is, वो क्या prevent करेगा? It prevent the backflow into the ventricular. ventricles में backflow blood का यहाँ पे prevent करेगा. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and the bicuspid valves are pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which is being emptied into the veins. The blood now once again move freely by the ventricles.
ठीक है, these ventriculus and arteria are now relaxed, जिसको हम joint diastole कहते हैं, and soon the SAN generate a new action potential, the event described as we have this cardiac cycle. तो ये जो सारी events है इसको हम cardiac cycle कहते हैं. The event is in the heart are cyclically repeated, अभी repeated होती रहती हैं जिसको हम cardiac cycle कहते हैं, and it consists of systole and diastole both the arteria and ventricles. ठीक है, as already I mentioned, the heart beat कितनी होती है 72 times per minute, right? इतनी बीट होती है. That many cardiac cycle are performed per minute. From this could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. तो एक cardiac cycle की जो duration है होने की सिस्टोल और डायस्टोल पूरी प्रोसेस की, उसको कवर करता है 0.8 सेकेंड में. ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? जब हर एक जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें हर एक वेंट्रिकुलर पंप अराउंड 70 ml ब्लड जो है वो पंप आउट करेगा, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट. अब इसको स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हार्ट रेट लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी हार्ट रेट हमारी कितनी होती है 72 बीट पर मिनट, राइट? मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा हमें. देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट एज डिफाइंड एज द वॉल्यूम of the blood pump out by the ventricular per minute averages 5000 milliliter or 5 liter in a healthy individual. तो 5 लीटर जो है आपका ब्लड, यहाँ पर आपका कार्डियक आउटपुट प्रेजेंट होता है. The blood has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate, therefore thereby the cardiac output. इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है. लेट्स सपोज एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन. यहाँ पे कार्डियक आउटपुट किसका हाईएस्ट होगा? एथलीट का होगा एज पर द ऑर्डिनरी, बिकॉज दे आर एक्सरसाइजिंग डे टू डे लाइफ, उसकी जो स्टेमिना है वो भी इंक्रीज होगा. During each cardiac cycle, two prominent sound are produced, which is easily heard through stethoscope. अब stethoscope में जब हम like heart beat measure करते हैं, सुनते हैं, तो हमें दो साउंड सुनने को मिलती है. एक होती है लब और एक होती है डब. लब डब ये एक नॉर्मल हार्ट बीट की साउंड है. ठीक है, so the first sound is lub, this one is the first sound, and dub is second sound, associated with the closing of tricuspid and bicuspid valve. तो लब मीन्स जैसे ही ट्राइकस्पिड बंद होगा, valves बंद होगी. and the second is dub, associated with the closure of semilunar valves. These sound are clinically diagnostic significance. तो डब हमारा है यहाँ पे ये सेमीलूनर जब क्लोज होगा और हमारी जो वॉल्व्स हैं जब क्लोज होंगे तो हमें लब सुनाई देगा. ठीक है, लब डब आर दी टू साउंड्स. सो दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कार्डियक साइकिल. ठीक है, अब हम बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.